So Dr. Aruna Kalra is here with us with a book. She has recently wrote a book, I Want a Boy. So the book is about the Indian obsession with a male child. So she is with her, we'll have an interaction with her, we'll know more about her and her book. So please welcome Dr. Aruna Kalra. So ma'am, I have a few questions for the interaction. So the first one is, we ask all the authors that what inspired you to write I Want a Boy? Was there a particular moment or event that triggered the idea for the book? So thank you very much for having me. I'm really excited, and again, this is a very, very dear topic to me because every day I'm facing this issue. I'm a gynecologist and obstetrician, and as an obstetrician, there is like every day I have a 50 number of OPDs every day, morning 9 to night 9. Okay, and a percentage of people or couples who come and ask that they want a boy. I started my practice 25 years back, and the percentage has not decreased till date. I started with government hospital, and the population there was not very educated or well off. Now I'm in boutique maternity hospital where affluent couples come, and they are either IAS or from IMA, or IIT or सब तरीके का education background, मगर फिर भी एक ही want है. I want a boy. I want a boy. Writing a book is a tough task. Reading a one is easy, I guess. So it needs time, some researches, a creative mind also. So how did you balance your professional career with writing? प्रोफेशनल करियर तो फ्लो के साथ हो ही रहा था. हर रोज जाना है, हर रोज काम करना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मगर जब रोज आप ऐसी सैड स्टोरीज सुन रहे होते हैं और आप हेल्प नहीं कर पाते हो पेशेंट्स का. कई स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी जहाँ पर कि मैंने ओपन एंडेड छोड़ दिया कि आई जस्ट वांटेड टू होल्ड ऑन टू दैट फीमेल. कैसे उसको दोबारा मिलूंगी, कैसे उसकी हेल्प करूंगी अगर मेरे पास कोई आंसर हुआ, क्योंकि वो उसका पति उसके घर से निकाल देगा या उसकी बेटियों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा. तो ये पेन जब बढ़ता गया तो आप घर पर आकर फिर उसको पेन डाउन कर देते हैं. यू जस्ट स्पिल दैट पेन इन दी डायरी. सो दीज स्टोरीज आर नॉट वर्क ऑफ 3 months, 6 months और अ ईयर. मैं 20 सालों से लिख रही हूँ सारी स्टोरीज. कोविड में जब पॉज मिला, थोड़ा सा ओपीडी प्रैक्टिस कम हो गई, ऑनलाइन हो गया, रेगुलर इलेक्टिव केसेस कम हो गए, तो बहुत टाइम था. तो वो डायरी को मैंने डिजिटलाइज कर दिया. उसके बाद जब मैं कर रही थी, तो जब मैं पढ़ रही थी वो स्टोरी, जब वो डिजिटलाइज करते वक्त, तो मुझे फिर से हर स्टोरी पर रोना आया, क्योंकि आई कुड एक्चुअली विजुअलाइज दैट पेशेंट अगेन. तो मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी स्टोरीज हैं, पता तो चले कि दिल्ली, हार्ट ऑफ आवर इंडिया, कैपिटल में ऐसा हो रहा है, किसी को पता भी है कि ऐसा हो रहा है. तब मैंने फिर पब्लिशर्स को चेज करना शुरू किया. सो इट्स नॉट लाइक, एज आई सेड, कि इट इज माय डायरी, इट इज नॉट वन डे वर्क. दीज आर ऑल every day pain for me, and that I just spilled on the paper. You have also included the anecdotes from your childhood also, your medical college days. They were amazing also. I could relate some. I am from an engineering background, but I can relate to the hostel stuff is same everywhere. Either you're in medical or engineering. So I just wanted to have some fun part also. I didn't want all sadness. We could relate to those protests and everything. That was amazing. So in I Want a Boy, you describe the somber reaction of families upon the birth of a girl. Can you share some of your most poignant experiences in the labor room and how these moments have impacted you personally and professionally? लेबर रूम में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो मैं बहुत ही हैरान हो गई वहाँ पर ये देखकर कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. एक पेशेंट जो कि चौथा बच्चा डिलीवर कर रही थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने लिखा भी है कि एक ही टेबल पर, एक ही बेड पर 3 पेशेंट्स बैठे होते हैं. एक का अम्नियोटिक फ्लूइड, कि एक के अम्नियोटिक फ्लूइड बह रहा है तो दूसरे का ब्लड है, तो एवरीबडी इज सिटिंग ऑन द सेम सॉडन
मैट्रेस। और उस वक्त जो और इतने सारे पेशेंट्स होते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आप हर 2 घंटे में मॉनिटर करें। पेशेंट को पता होता है कि उसको कब फाइनल पेन आने वाला है जब वो डिलीवर हो जाएगा। तो जो इंटेलिजेंट प्रेग्नेंट लेडीज होती है जो कि ऑलरेडी तीसरा चौथा बच्चा कर रही होती हैं, वो एक लेडी ऐसी बाथरूम में गई और वहाँ बाथरूम भी खुले होते हैं, दरवाज़ा होता नहीं है सरकारी में, और पूरा फर्श गीला हो रहा होता है क्योंकि टैप भी लीक कर रहा होता है, ओपन है, स्टूल पड़ा है, यूरिनेशन, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ही गंदा। So she went inside the bathroom and she knew this was her final pain and she would now pop out the baby. तो जैसे ही उसने वो बच्चा निकला, वो डॉटर थी, ठीक है, वो उसकी चौथी लड़की थी। उसने अभी प्लासेंटा भी सेपरेट नहीं हुआ था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उसने कॉर्ड ली और गले में उसके जोर से खींच के मतलब उसको स्ट्रैंगुलेट कर रही थी। तो इतनी देर में आया, आई और जोर से उसको खींचा। फिर हम लोगों को बुलाया कि डॉक्टर वो अपने बच्चे को गला घोट रही है, मतलब मार रही है। तो फिर जब हम पहुंचे, इतने गंदे बाथरूम में आप सोचिए जाना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो हम लोग पहुंचे तो एक्चुअली उसके चेहरे पे कोई दुख नहीं था, कोई रिमोर्स नहीं था कि उसने मारा। शी हैड वेरी स्ट्रेट फेस, शी हैड स्ट्रैंगुलेटेड हर डॉटर एंड शी वाज काम। और उसको फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हुआ है, थप्पड़ भी खूब मार देती हैं नर्सेज भी, उसको 2-4 स्लैप लगाए कि क्या किया तुमने, व्हाट इज दिस, एंड दिस इज इन दिल्ली, इट इज हैपनिंग इन दिल्ली हॉस्पिटल। तो वो बिल्कुल स्टोन फेस, इतने जैसे होता है ना कि दुख पा के ढीठ हो चुके होते हैं, वैसा। थप्पड़ खाने के बाद भी कुछ नहीं बोली, उसको खींच कर बाहर लेकर आए। शी वाज लाइक प्लासेंटा निकल रहा है, ब्लीड कर रही है, उसने अपनी बेटी को मार के, शी थॉट मैंने ही पैदा किया है, मेरा फ्लैश एंड ब्लड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ शी इज नॉट गोइंग टू गेट अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, लेट हर डाई, दिस इज वन। सो शी, दिस इज, दीज आर इंसिडेंसेस व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू लाइफ। ये एक ऐसे और बहुत सारे हैं कि जब मैं ओवर द ईयर्स, पहले मैं एज अ बबली यंग डॉक्टर आई यूज्ड टू प्रीच देम, डांटती थी कि पढ़ा लो ना डॉक्टर को, मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी तो पढ़ी हूँ, मैं भी तो डॉक्टर बनी हूँ, क्या हो गया, तुम क्यों बेटा बेटा करते रहते हो, लड़कियाँ पढ़ के बहुत वो हो जाता है, उनको समझाने की कोशिश। बट ओवर द ईयर्स आई अंडरस्टूड कि उनकी लाइफ घर पर जाके बहुत बदतर होने वाली है, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनकी बेटियों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, कॉन्स्टेंट अब्यूजिव बिहेवियर किया जाएगा। तो फिर मैं उनके साथ सिंपैथाइज करने लगी कि ठीक है, उनको कुछ शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं, until unless we change the mindset, orthodox mindset. And most of the time now I realize that when I'm delivering second or third time a lady who has already 1 or 2 second daughter, I pray to God like भगवान इसको लड़का दे देना, नहीं तो इसकी लाइफ। So this is what I have started praying कि लड़का दे दो, और भगवान, एंड मुझे नाराजगी ये भी है भगवान से कि वो फिर भी नहीं मानता है। He has his own plans. I don't know क्या प्लान है, मगर उन औरतों का तो बहुत। Right. So this all this stuff, this I mean stories that I've read, this story you have described in the book also. So you are experiencing it. You are the first person there. So these stories, these incidences must be taking a toll on your mental health also. So how do you keep up with this? How to stay in this? See, as a doctor, वो पेन तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में रहता ही है। चाहे ये टॉपिक लिया जाए कि आप दोबारा बेटी हो गई, और या फिर कोई और है जिसमें कि कैंसर है, पेशेंट को सीरियस है, या तो वो दुख तो आप हर दिन ले ही रहे हैं। कभी खुशी दे रहे हैं कि आप बच्चा पैदा हो गया तो सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी आपने डिजीज ठीक कर दी तो यू योरसेल्फ आर सैटिस्फाइड दैट पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। But sometimes when you go back and things are not in their favor or your favor, then you feel sad. And for that you read, you write, I dance, I learned Bharatnatyam, I learned Kathak. So just to divert your mind, you do so many things. But I feel that writing was the most, I think, relaxing thing for me. I could always spill it on the paper and then I would feel that, okay, now I'm out of that, like everything is out of my system.
Great. So the book delves into the helplessness of a wife's family, often feels when faced with a husband's family's disappointment over a girl's child. How do you think these deep-rooted societal expectations can be effectively challenged and changed? चैलेंज और चेंज तो तभी हो पाएगा जब लड़की पढ़ी लिखी पढ़ाएं आप अपनी बेटी को और उसको वोकेशन भी दें। तो वो पढ़ने के बाद उसको नौकरी करनी है, उसके पास खुद का घर, खुद का पैसा। देखिए आप ऐसा भी है ना कि बेटा होता है तो एक्सपेक्टेड है ना कि वो घर बनाएगा, या आप उसको एक घर देते हैं कि ये आप अपनी बीवी के साथ रहेंगे। तो डॉटर्स के दिमाग में बचपन से डालना है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट। आपका कोई एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आ रहा है और अमीर आदमी से शादी कर रहे हो, ऐसा दिमाग में मत रखो। ठीक है, आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद बनना है, आपका खुद घर होना चाहिए। यू शुड ओन अ कार, यू शुड हैव अ होम। आप डिपेंड क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो? तो मुझे फेरी टेल वाला बना रखा है कि आपकी शादी एक अमीर घर में हो जाएगी और फिर वो लड़का जो है आपको खुश रखेगा। व्हाट डज दैट मीन? व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन समबडी? वो चेंज होते ही देखिए लड़की, मैं एज अ गर्ल आई वांटेड अ डॉटर एंड आई नो मेनी ऑफ माई पेशेंट्स दे वुड ऑलवेज से कि मुझे लड़की चाहिए, क्योंकि एज अ गर्ल यू ऑलवेज वांट अ डॉटर। उसको आपको लगता है सजाएंगे, जो आप कुछ नहीं कर पाए वो करेंगे। और एजुकेटेड मेन, आजकल के जो एजुकेटेड बच्चे हैं लड़के, वो भी लड़की चाहते हैं। एंड आई फील सो गुड कि अभी दोनों के दोनों IIT में थे, दोनों के दोनों IIM में थे और वो पढ़े एक साथ जॉब किया। अब दोनों अच्छा कमा रहे हैं, इनफैक्ट कई बार लड़की उससे ज़्यादा कमा रही है। तो दे हैव इक्वल राइट इन एवरीथिंग एंड बॉयज ऑल्सो आर एब्सोल्युटली मैच्योर। दे वुड से पहली भी डॉटर तो दूसरी भी आई वांट अ डॉटर। So we expect better from the coming generation. Absolutely. I wish that So it changes. this is a scene that you've described, that the family of the wife is happy from the birth of a girl child, but the sad faces of the husband's family don't let them celebrate. So how can what is the awkwardness, or what we can say can we do for the wife's family? Like what should be their approach for this situation? So again, अभी मैंने कहा कि अगर बेटी पराया धन मानेंगे, Yes. तो फिर आपको यही लगेगा कि बेटी पैदा हो गई, आप मिठाई लेके गए और ससुराल वालों ने कहा तो बेटी है, अब इसमें मिठाई बांटने वाली भी कोई बात नहीं है, तो क्या सेलिब्रेट करना है? तो आप, हाँ, तो आप अपनी मिठाई को साइड पर रख लेते हैं फादर की। हाँ, शायद अभी क्या बोले ससुराल में कि अगर बेटी हो गई तो मिठाई बांटने जैसी भी तो कोई बात नहीं है। अगर आपकी सास ने ऐसा कह दिया तो इसका मतलब कि जो मेरी जिस फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया एज अ डॉटर इन लॉ, दे आर नॉट प्रोटेक्टिव ऑफ मी। वो मुझे बिलिटल कर रहे हैं इस बात को कि मैंने डॉटर, तो फिर वो तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर यही एक्सेप्टेंस मुझे अपनी भी फैमिली से मिले, जैसे अभी एक बच्ची यहाँ पर कह रही थी उसकी माँ को बेटा चाहिए था और मैं बेटी हो गई, तो अगर आप इस दुनिया में आए हैं, आप अगर मैं इस डोर से अंदर गई और मुझे सारे ऐसे फेस दिखे जो मुझे वेलकम नहीं कर रहे हैं, हाउ वुड आई फील? आई थिंक आई एम नॉट वेलकम, व्हाई शुड आई बी हियर? इफ आई हैव, मैं किसी के घर में पैदा हुई और वहाँ पर सब लोग मुंह बना के बैठे हैं, मिठाई भी रहे, तो और मुझे बड़े होते होते पता चल रही है बात कि मेरे, तो आप अपनी एक्सिस्टेंस पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो वो वाली बात कि अगर मैं पराया धन हूँ तो मेरा फादर और मेरी मदर मेरी डॉटर का बर्थ सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मैं उनके घर की बहू हूँ, अभी तो वो जो चाहेंगे वैसे ही सेलिब्रेट होगा। क्यों? मैं उनके घर की बहू नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी हुई इस लड़के से, हम दोनों एक अलग न्यूक्लियर एंटिटी है और वी हैव ऑल द राइट वेदर यू लाइक इट और नॉट। जिसको मेरी खुशी में खुशी है वो सेलिब्रेट करे, नहीं है तो नहीं करे। लेकिन वो ऑकवर्डनेस जो मेरे पेरेंट्स ने एकदम महसूस की कि मिठाई क्या बांटने की ज़रूरत है, वो सो एंड देन आई लुक्ड एट माय फादर, ही इज सच अ सीनियर ऑडिट ऑफिसर जो कि इतना अपने जॉब में एक अथॉरिटेटिव फिगर थी। ही वॉज staring at me and calmly telling me that quiet doesn't matter. At this point of time, you should not say anything. You should be quiet. And looking at him कि क्या आपने तो हमें कभी सिखाया नहीं ऐसा. We were 3 daughters and we were
हमें तो किसी ने डॉटर और सन ही नहीं बताया, हम तो बच्चों की तरह पले थे बड़े थे, किसी ने बोला ही नहीं कि तुम डॉटर हो या सन हो। तो वो फादर आज मुझे एक कूल स्टेयर दे रहे हैं कि कुछ नहीं बोला। ऐसा फील होता है कि फादर्स जैसे डॉटर्स के लिए रहता है, जैसे फैमिलीज का ही रहता है, पूरी गर्ल फैमिली का, कि थोड़ा सबमिसिव रहते हैं एक बॉय की फैमिली के, कि रिश्ता बना रहे, ऐसा ना हो वो उसको छोड़ दे या कुछ बुरा मान जाए या इनके फैमिली में हमारी बेटी को परेशान करें ये लोग आगे जाके, इस वजह से वो थोड़ा सबमिसिव एक रूट अपनाते हैं, ऐसा देखने मिला है। और ऐसा कहना जैसे दूसरी बेटी होगी तो मेरे पेशेंट्स का कि फ़ोन आ रहे हैं, मैं लेबर में रूम में ही हूँ, बेटी पैदा की आपकी की दूसरी बिटिया हुई है, तो फ़ोन आने शुरू, तो वहाँ से सुना आई कैन ओवर हियर कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आजकल तो ठीक है, बेटियाँ भी ठीक ही होती हैं, कुछ नहीं अगली बार देख लेंगे। तो क्या मतलब है ये, इज इट कॉन्सोलेशन कि कोई नहीं दूसरी भी हो गई, आजकल तो ठीक ही है? दिस इज नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज एक्चुअली नॉट। As you have mentioned that you worked in government hospitals as well as in corporate or private hospitals, you are working in one. What are the most significant differences you have observed in terms of resources, patient care, and overall experiences as a doctor? How do these differences influence the quality of care for women, particularly in maternity wards? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर करके दिखाऊं तो सुबह 9 बजे अगर हम जाते हैं तो 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी होती है, ठीक है, और आपने ओवर लिया और उसके बाद से एक डॉक्टर ओपीडी में बैठा है जहाँ की 500 पेशेंट आने हैं और लाइन लगी हुई है सुबह से, तो वो लिखे जा रहा है, हिस्ट्री पूछा लिखे जा रहा है आपको, पेशेंट को बस एक डॉक्टर बीपी चेक कर रहा है, सो जूनियर मोस्ट इंटर्न बीपी और वेट चेक करके पर्ची पे लिख के आपके पास भेज रहे हैं, आप उसकी शक्ल देख रहे हैं, कितने महीने से पूछ रहे हैं, तकलीफ उसने कुछ बताई तो आपके पास टाइम नहीं है भाई, आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, फिर उसको ठक से करके रूम में डालो, 4 रूम है, वहाँ पे 4 डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं और उसके साथ 4 डॉक्टर लिखे हुए हैं जो वो एग्जामिन कर रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, फिर वहाँ से नोट करने के बाद वो लेबर रूम में धकेले जा रहे हैं। तो लेबर रूम में बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं जिसमें बहुत सारे बेड्स हैं और फिर वो खट अंदर गए और फिर द लेडी इन प्रेगनेंसी विद बेली एंड शी इज हैविंग पेन और वो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा उससे, एंड शी इज जस्ट स्टैंडिंग कि किस रूम में जाऊँ, 2 बड़े हॉल हैं, तब तक पीछे से एक और धक्का आता है, 10 और पेशेंट आते हैं कि भैया तुम चल रही हो नहीं तो हम आगे बढ़े, फिर वहाँ पर बेड में कोई जगह नहीं है, तो इफ शी वांट्स टू सिट ऑन वन बेड वेयर ऑलरेडी अनदर लेबरिंग वुमन इज सिटिंग, शी वुड शो हर कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो यू हैव टू फाइंड द प्लेस इन लेबर, यू आर हैविंग कंट्रैक्शंस और आपको ऐसा करना है, तो हमारे लिए तो वो फैक्ट्री है। जब आप 9 बजे से शुरू हुए तो आप जिस चेयर पर बैठे वहीं बैठे रहेंगे, आपको मुँह जाने की भी परमिशन नहीं है, यू कांट गेट अप बिकॉज और जब ओवर मिलता है शाम को, तो जब मैं ओवर दे रही हूँ तो ऐसे दे रही हूँ, उसका एक टॉपिक है इंटरनल ब्लीड है, 2 लीटर ब्लड लॉस हो चुका है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अटेंडेंट से मना कर दिया है कि वो ब्लड नहीं देंगे, वो आदमी भाग गया उसका, तो कहीं से ब्लड अरेंज करना, तो क्या भैंस का ब्लड लाए, कहाँ से लाए। फिर एक है उसका रप्चर यूट्रस हो गया है, वो डाई हैंडल्ड केस है, 10 घंटे से या 24 घंटे से लेबर में थी, किसी गांव से आई है, बच्चादानी फट गई है, बच्चा मर गया है लेकिन सिजेरियन करके निकालना है, एक वो है, 4 लेबरिंग पेशेंट है, उसकी 2 की एपिजॉटमी सिली है, ऐसे करके आप ओवर देते हैं, तो जो ओवर में डॉक्टर ले रहा होता है वो कहते हैं, उसके बाद वो रात भर शुरू हो जाता है, तो 50-60 डिलीवरी एक उसमें होती है। अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आएगी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक अलग ही है, एफ्लुएंट लोग आते हैं वहाँ पर, लुई वुइटन का बैग होता है और फिर वो आएंगे एंड देन दे वुड बी लाइक एज सून एज दे आर प्रेग्नेंट दे वुड लाइक क्या प्रिकॉशन लेनी है, और उनका 101 केयर मिल रहा है, बिल्कुल बहुत एवरीथिंग इज बिल्कुल करेक्ट। हाँ, और सारे 1000 इन्वेस्टिगेशंस लिखी जाती हैं क्योंकि एंटीनेटल एक्चुअली वो ज़रूरी है, एंड दे वुड आस्क कैन वी बेंड, कैन आई क्लाइंब स्टेयर्स, can I eat this thing, can I do this thing, so they would be like absolutely princess। हाँ, कुछ नीच उनके शू अगर बेड पर लेटना है तो शू भी हस्बैंड खोलेगा क्योंकि बेंड नहीं करना क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो एक अलग ही है। तो जो कॉर्पोरेट या बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें आपको वेरी स्पेशल केयर वो तो मिलेगी, बट बाय दी बुक ट्रीटमेंट होगा।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे टेस्ट होने हैं, ये आपको डाइट लेना है, ये एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज का ये रूम है, दिस इज द स्टूडियो, दिस इज योर routine of exercise, you would come and do exercise here. So everything is itinerary is set for your 9 months. You would be given birthing plan classes, Lamaze classes, so you're mentally prepared for pain, for breastfeeding and all. वो एक अलग ही दुनिया. How does it relieve the doctor as a pressure that you mentioned in the government hospital? So as a doctor, what's the benefit in the corporate hospital by these measures? So see, ऐसे तो होना ही चाहिए कि आपका प्रोटोकॉल जो है, जो मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि वो इतना काम कर करके उनको हर एक चीज़ ऐसे क्लिनिकल जो है टिप्स पर होती है, चाहे वो कितनी से कितनी कॉम्प्लिकेटेड. सो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल करके आप प्राइवेट में आते हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आ जाए आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपने वो हज़ारों कर रखी होती है. तो वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत है, आप और वहाँ पर जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल. यहाँ पर टू द टी फॉलो होता है. वहाँ पर पेशेंट को कोई पर्सनल केयर नहीं मिलती, कोई प्राइवेसी नहीं मिलती, कोई पर्सनल टेंशन नहीं मिलती, मगर ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली परफेक्ट होता है, मतलब बेटर ट्रीटमेंट होता है. इनफैक्ट हम लोग एज अ डॉक्टर, जूनियर इंटर्न्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्कैसिटी ऑफ ग्लव्स, स्कैसिटी ऑफ गाउन, स्कैसिटी ऑफ एवरी इंजेक्शन, तो हम लोग लोड करके अपनी पॉकेट्स में भरकर रखते थे कि व्हाट इफ somebody starts bleeding post delivery and at that point of time I would not get any injection. तो वो चीज़ें हम वहाँ पर फाइल अप कर लेते थे. तो एज अ डॉक्टर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आया, वो मर रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग को ब्लड देने के लिए अटेंडेंट कभी तैयार नहीं होता. नहीं जी, मेरा बेटा तो बहुत कमज़ोर है, वो कैसे ब्लड देगा, या बेटा उसी वक्त भाग जाता था तो है ही नहीं, बहू ब्लीड कर रही है, कोई ब्लड देने को नहीं आएगा. और आया वहाँ पे कहती थी, अरे अरे ये लोग डॉक्टर अरेंज कर लेंगे ब्लड, तुम मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह दो वैसा कह दो, अभी ब्लड तो चाहिए. तो हम लोग MBBS जो स्टूडेंट्स होते थे उनके हॉस्टल में दौड़ाते थे कि जाओ उनको बुलाकर लाओ, ब्लड चाहिए. और वो लड़के 17, 18, 20 साल के भागे भागे आते थे कि ब्लड चाहिए. तो दे यूज्ड टू डोनेट फॉर आवर पेशेंट, बिकॉज when you are a treating doctor you would not then go and knock government's door कि भैया क्या बात है, यहाँ इंजेक्शन क्यों नहीं है, ब्लड बैंक में ब्लड क्यों नहीं मिल रहा. आपको उस औरत की उस वक्त जान बचानी है, तो आप कुछ भी करके बचाते हैं. So you discussed the complex emotions you felt towards your own son after the abortions of female fetuses. How did you navigate these feelings, and what message do you hope to convey to readers about the psychological and ethical challenges doctors face in such situations? This is really painful question. So, see, when you keep seeing female feticide everywhere around and you have been through that, you start hating that gender. So it was really, but it's all very natural for me कि मुझे उस जेंडर से ही नफरत होना शुरू हो गई, जिसके लिए कि हर एक औरत मर रही है, डेथ ऑन टेबल हो रही है, किसी को कोई घर से निकाली दी जा रही है, कोई तीसरा बच्चा पैदा करते करते मर गई. तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये दिस इज रॉन्ग एंड नन ऑफ हिज फॉल्ट. ही वाज अननेसेसरी. व्हेन I had this child of mine second, I was like, I didn't have that feeling of love or happiness towards him. It took some time जब वो समझ में आया कि उसे एक्चुअली पता नहीं है कि वो बेटा क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि वो बेटा है. तो जब वो छोटा, मेरी फीलिंग्स तो उसके अगेंस्ट इसलिए थी क्योंकि मेरा सराउंडिंग और मैं उस आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दोस सैडनेस एंड पेन. बट व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तब मेरे को धीरे धीरे प्यार शुरू हुआ उस पर, क्योंकि जब वो डर जाता था तो कहता था कि मैं जब डर जाऊंगा तो बोलूँगा डी, तो आप भागे भागे आ जाना. जब मेरा पूप हो जाएगा तो मैं बोलूँगा हो गया तो एच तो आ जाना. मैंने कि पागल, तेरे पास पेनिस है, तू इतना इम्पोर्टेंट है दुनिया में, तू एच और डी बोल के मुझे बुला रहा. तो आई यूज्ड टू फील कि ये तो लड़के को पता नहीं है कुछ कि कितना स्ट्रॉन्ग है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हैविंग लव टुवर्ड्स हिम. बट इनिशियली बिकॉज आई वाज द victim of my circumstances, I
did not feel that. And I think ऐसा ही होता होगा। मेरी एक और बहुत ही डियर पेशेंट, अब उनके पेशेंट्स को आप 1, 2, 10 बच्चे जब डिलीवर कराते हो तो आपको बहुत डियर हो ही जाते हैं। शी वॉज डिलीवरिंग हर 4th child and I was praying to God कि इस बार, and every time she was wanting a boy and she was not able to, तो मैं भगवान से गायत्री मंत्र कर रही थी कि भाई इसको अब दे दियो बेटा, ये बहुत सफ़र कर रही है। मगर anyway, फिर once upon a time again she had pregnancy and she delivered this time boy. But from that moment onwards she was so loving to her daughters because she now thought कि अब ये बेटा हो गया, अभी तो सेट है, अब ये एलेक्सर मिल गया, अब उसको कोई अब्यूज नहीं करेगा, अब उसकी बेटियों को कोई they would not look down upon them. So beta was just a token and then she was all love for her daughters. So, what are the most significant issues in women's health today? How can communities and individuals contribute to better awareness and support for women's health? See, women की हेल्थ के लिए सबसे पहले तो उनको राइट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होना है। अब कॉन्ट्रासेप्शन का पता ही नहीं है। इनफैक्ट कल परसों ही एक पेशेंट मेरे पास आई एंड शी सेड कि बैठते ही पहला उसका ये था कि प्लीज डॉक्टर डोंट बी जजमेंटल। सो इट मीन्स शी हैड बीन टू मेनी डॉक्टर्स जहाँ की डॉक्टर जजमेंटल हो गई थी। तो उसने कहा कि जब मैं गई और मैंने बताया कि एंड आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय माय पेशेंट दैट आई एम नॉट जजमेंटल, सो दैट्स हाउ शी केम एंड शी सेड कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ एंड I was forced not to use contraception, and that is why I'm really scared that I might have contracted sexually transmitted disease. And we know that we live in this society where we have live-in relationship and we keep changing chairs till we find a perfect chair to sit on. तो उस केस में तो आपको contraception का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन for some or the other reason they don't use. They do not have right information which only doctors can give, which social media, when on social media we have so much of rubbish stuff going on. अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन पर बोले कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ हैं, कॉन्डोम यूज़ करना है, मिलना या इंट्रायूट्राइन डिवाइस सेफ है, तो कोई बोलता नहीं है, कोई आता ही नहीं है। वो एक सेलिब्रिटी ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया, मैं मर गई, तो HPV वायरस के अगेंस्ट वो वैक्सीन लगना चाहिए, तब तो सारे लोग आ गए। बट वो एक सेलिब्रिटी अगर बोल रही है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी को, उनको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अवेयरनेस तो हमारी सोशल मीडिया से बहुत जल्दी फैल जाती है बिकॉज एवरीबडी इज स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम हियर। तो एक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी, और सेक्स एजुकेशन जो टीनेज में मिसिंग है। आई डोंट थिंक कि किसी की भी माँ या फादर उसको ओपनली बैठ के, मतलब वेरी फ्यू परसेंटेज मस्ट बी देयर, बट हम कहाँ बताते हैं कि आप अपना प्राइवेट एरिया कैसे क्लीन करना है, या मास्टरबेशन क्या है, या सेक्स करते वक्त क्या ध्यान रखना है, या इवन इफ़ यू हैड some encounter like that, come back to me, I am here to listen to you, I'll be giving you a solution. So I as a doctor would tell my daughter कि भाई abortion मैं ही अच्छा करती हूँ, तो just in case you land up in that kind of situation, come back to me, I'll do that. But if you are open, and ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि if you are open, आपने उनको green signal दे दिया कि they can do it, but they become more responsible. आप उनको जितना ज़्यादा डिटेल में बता देते हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज वो कौन से ही देखेंगे या फिर फ्रेंड से पूछेंगे कितना पता है फ्रेंड्स को। तो टीनेज या यंगर जनरेशन को आपको सेक्स एजुकेशन और कॉन्ट्रासेप्शन का एजुकेशन देना है, और वहाँ से उनका एजुकेशन जो है वुड बी गुड एंड देन दे वुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। So, how can we work towards changing societal attitudes towards gender preferences? आई थिंक शान ये तो यही है कि अगर आपने एजुकेशन दे दिया एक लड़की को और उसको उस जैसे मैंने कहा कि डिपेंडेंसी से हटा दिया, फ्रीडम लिबरेट कर दिया, दैट शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हर फादर, ऑन हर ब्रदर, ऑन हर हस्बैंड फॉर एनीथिंग। ओके, एज बॉयज आर ऑल्सो
are expected to grow out of the paternal their family, और वो अपने आप अपना घर ढूंढे और अपना सब कुछ करे। मेरे ख्याल से जैसे जैसे एजुकेशन मिलेगी वो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट चेंज होता रहेगा। मैं ऐसी नहीं होंगी, तो एक जनरेशनल गैप जो है आएगा, मगर ये चीज़ अभी भी एफ्लुएंट लोगों में भी है। और एफ्लुएंट लोग क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं सेफ अबॉर्शन and gender selection, engineered baby, they can go abroad and they can opt for IVF, which is in which they would ask for boy and it would be boy transferred. तो अगर आपको आप बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, वहाँ की बहू हैं, तो आप भी एक्सपेक्टेड है कि आप बेटा पैदा करें, नहीं तो वो इतना सारा एम्पायर कौन संभालेगा। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप ये यू कैन पुट योर फुट डाउन कि मैं बार बार लड़कियां पैदा करके अबॉर्शन, बट फिर आपको ये कहा जाएगा कि आप चलिए दूसरी कंट्री में, वहाँ पर IVF से आपको मेल बेबी वो करेंगे, IVF से करेंगे। तो फिर वो मानना ही पड़ता है उनको। दे गो अब्रॉड फॉर 20 लाख 25 लाख में वो बेटा ट्रांसफ़र करा कर आते हैं, एम्ब्रियो, मेल एम्ब्रियो फिर यहाँ आके डिलीवर होते हैं। एंड इट्स नॉट हिडन, इट्स लाइक ऐसा नहीं वो आके आराम से पोस्ट करके बताते हैं तो डॉक्टर 25 लाख लगे थे उस अस्पताल में किया, क्योंकि वहाँ तो वो लीगल है ना वहाँ पर। तो दैट इज़, तो आप इसका मतलब उस फैमिली को खुश करने के लिए, उस फैमिली में एडजस्ट होने के लिए, जैसे आपने कहा कि एक मेल की फैमिली, एक हस्बैंड की फैमिली बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। इसी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा। आप कहीं भी सेफ नहीं, अगर आप बहुत बड़े बहुत अमीर खानदान की बहू भी हैं तो भी आपको बार बार ये रियलाइज़ कराया जाता है कि आपने बेटा नहीं पैदा किया और बेटा तो करना है। नहीं तो अगर उस फादर लॉ के 4 बेटे हैं और आप उसमें से एक बहू है और 3 के बेटे हैं, तो आपकी अगर 3 बेटियां हैं तो आपके हस्बैंड को दखल अंदाज कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। अब उस फीमेल के ऊपर कितना प्रेशर है कि मेरे हस्बैंड को प्रॉपर्टी से ही निकाल दिया जाएगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो शी वुड डू एवरीथिंग फॉर हर हस्बैंड कि मैं कुछ भी करके अबॉर्ट करा के करके इसको एक बेटा दे दूं कि मेरी बेटियों को तो इस प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। Choice. So, is there a particular message you hope readers take away from your book, I Want a Boy? जैसे आपने किया ये ऐसा बुक क्लब में, अगर मैसेज सिर्फ ये है कि अगर एक इंसान ये समझ ले और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, जो कि हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त मुझे लगता है कि सब लोग इक्वल ही हैं, फीमेल्स और मेल्स, बट यही चीज़ अगर देखिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को तो चेंज करेगी नहीं। उसने लॉ बना दिया, प्रॉपर्टी लॉ बना दिया कि लड़कियों को भी बराबर का मिलना चाहिए, लेकिन आपने पहले ही मतलब बराबरी करने से पहले ही आपने बिल में लिख दिया, तो आप उसको हर तरीके, इंडियंस को हर तरीके का बाईपास पता है ना, तो वो तो कर ही देंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी? वो उसने आशा वर्कर कर दी कि आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है, लेकिन अगर आप कराना ही नहीं चाहते दाई से घर पर, so government is doing their bit, but you would be amazed कि पंजाब और हरियाणा जैसी कई जगहों में आप बस से नीचे उतरे और आपने पूछा कि मुझे वो चेक कराना है, तो ऑटो वाले को पता है कि आपको कहाँ लेकर जाना है और वो लेकर जाएगा, उसका बाहर खड़ा रहेगा कि लड़का है कि लड़की, तो अबॉर्ट कराना होगा तो चलिए वहाँ पर ले चलते। तो इतना कॉमन है कि यू कैन एक्चुअली गो टू एनी स्मॉल टाउन इन पंजाब और वहाँ पर ऐसा होगा। और गलत हद ये है कि टाउन में एक LED स्क्रीन लगी हुई है, एक प्रोब जैसी चीज़ है, और उसमें कुछ फिल्म चल रही है लगातार जिसमें छोटा बेबी एम्ब्रियो दिखा रहे हैं। प्रोब और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दे आर पुटिंग प्रोब ऑन यू एंड दे डू नॉट नो दैट फेलो इज नॉट डॉक्टर। ओके, उसने अल्ट्रासाउंड के मशीन को खोल रखा है दुकान, हर एक को करके 80% को वो बोलता है कि फीमेल है, उसको पता नहीं है। ठीक है, उसने फीमेल क्यों बोला? क्योंकि अगर उसने बोला मेल है तो आपने 20-25 हज़ार रुपये दिए और आप चले गए खुश होके। उसने बोला फीमेल है तो फिर वो पूछेगा कि अब अबॉर्ट कहाँ कराना है, तो वहाँ पर अबॉर्ट कराने के लिए भेजोगे। तो ऐसे आपका मेल भी होता है तो भी आप अबॉर्ट करा रहे हो। Scam going on.
So that was our book, I Want a Boy. So if you want to have a look, the books are there with you. And that's all with the questions that we had.